Hi. Hello everyone. Good morning from Shanghai and good afternoon, good evening for everyone who are coming from different parts of the world. And this is live again. I am live again with my amazing business partners. So I want to whoever is watching us, please come live. और हमें आप हमारी बहुत important conversation होने वाली है. Please join us so that you can take important information about this business. एंड अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ पहले अपने बिजनेस पार्टनर से, देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो आई हैव फलक इरफान एंड शी इज फ्रॉम New York and she's doing amazing in this business and she's here to discuss her experience and her journey in this business. Thank you so much, Falak, for coming here and I'm looking forward to hear more from you. Thank you so much. First of all, thank you so much, Nidhi, for having me on your page. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके पेज पे एज अ गेस्ट आई हूँ. तो first of all, let me introduce myself. As everybody know about me, but I have to introduce myself again. So my name is Falak Irfan, and I am a housewife. I'm living in New York for past 4 years with my family. I have two daughters, and now I am a business owner as well. Thank you so Yes, much. so you are a housewife and a proud digital business owner. Yeah, How, exactly. how, I am proud to be a business owner. yes, exactly. Thank you so much once again. And we have Satnam. Satnam is also from US, and Satnam is in this business from last couple of years, and she's also doing amazing. And she has some amazing experience to share with us. Thank you so much, Satnam, for coming. And I'm looking forward to talking with you and getting your experiences. थैंक यू निधि, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कोई भी स्केप्टिकल था, पर मैं इस बिजनेस में आई हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ थीम ऑफ दिस बिजनेस. एंड मैं बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ इस बिजनेस को करना. एंड आई एम ग्रोइंग, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट माय बिजनेस एंड माय जर्नी. एंड all those people who are still have doubts in their mind to join this business, they may be hear from us and get motivated and be a part of team. Yeah, exactly. So I'll introduce myself. I am Nidhi Sharma. I'm staying in Shanghai from last 12 years. So, and I have joined this business in the starting of 2024 because I wanted to change, bring some change in my life. And I think it was a very good change. And yes, as you said, Satnam and Palak, that today we are going to talk about the fears, the doubts, the challenges which we face and how we have overcame that, right? And सबके अलग अलग होने वाले हैं. And it's very important because हम सब we all are women and we all are understand each other and हम resonate करते हैं एक दूसरे से. So let us share. So my first question is, मैंने कुछ questions लिख ली हैं. My first question with first we'll start with Falak and then we'll go to Satnam and then I'll share my fear. कि सबसे बड़ा जो fear होता है, आपने जैसे अपने लीड से बात किया जो आपको रीच आउट करते हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फियर उनका क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड आप शेयर करिए और आपका फियर क्या था? It's a very good question, and it's a very well-aware question. I really appreciate that. Basically, fears तो हर एक की लाइफ में होते हैं, because without fears you can never reach out your goal. तो fears के साथ ही वो आपने एक वो सुनी होगी, do the due. तो इसीलिए fears मेरे भी कुछ थे, क्योंकि मैं जब अमेरिका में आई थी तो बहुत से आपको पता है इश्यूज होते हैं फैमिली के साथ. बहुत ज्यादा, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज तो बहुत होते हैं, अगर बेनिफिट्स हैं तो इश्यूज भी बहुत होते हैं. तो एक जो बेसिकली मेरे हस्बैंड ही थे, हु इज द सोल प्रोवाइडर, ही इज द ओनली वन हु सोल प्रोवाइडर. सो बेसिकली मुझे भी कुछ करना था, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड.
तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना है, बट मुझे बहुत न्यू चीज़ें करने का बहुत शौक था, बट आई एम ऑलवेज बी समटाइम्स स्केप्टिकल अबाउट दैट कि अगर मुझसे गलत हो गया तो ये ना हो कि कोई मुझे डांटे या मेरे हस्बैंड नाराज हो जाएं, तो इस तरह के फेयर्स थे। तो फिर मेरे बच्चे थे, फिर इन लॉज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फिर मैं चाहती थी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने इवन बाहर भी आउटसाइड भी जॉब की, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज ऑफ माई फैमिली, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम अपना देना पड़ता था। समटाइम्स मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती थी, बड़ी एब्सेंट माइंड होती थी, मूड स्विंग्स होते थे कि मैं क्या क्या करूं, आई एम द ओनली वन पर्सन। तो फिर सडनली मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मैंने कोर्सेज किए लाइक अमेज़न, फिर अदर थिंग्स, मैंने उसके कोर्सेज किए कि नहीं, आई हैव टू जॉइन द आई हैव टू ओन माय स्टार्ट बिजनेस। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने क्लासेस वगैरह ली, तो फिर मुझे कोई ना कोई कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। तो फिर जब मैंने इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें देखी, तो मैंने कहा कुछ तो स्कैम्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, बट जब आप तक आप अपनी खुद रिसर्च ना इसमें डालें, आप इस पर रिसर्च नहीं करते, तो फिर आप विदाउट रिसर्चिंग आप जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आप ले सकते। तो मैंने जब इस बिजनेस को एक्सप्लोर किया, तो फिर मैंने कहा चले 149, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ इट्स अ स्लो लो अमाउंट कि हम ऐसे ही कोई चीज लेने जाएं तो वो खर्च हो जाते हैं, यू कैन स्पेंड इट। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो वो बहुत ही इजी था, और मुझे इस चीज का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि यार एक इजीली आप घर में बैठ के अपने बच्चों को टाइम दे के अपने फैमिलीज को आप पार्टीज अटेंड कर सकते हो, और आपको को ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता इस बिजनेस में। एंड द अदर वन थिंग कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बड़ा कुछ फेस करना पड़ा, कुछ मेरे अदर रिलेटिव्स जो थे वो बड़े थे स्केप्टिकल के, पता नहीं ये अब सोशल मीडिया के थ्रू में आ रही है, बड़ी ऐसी मुझे बातें गॉसिप सुनने को मिली। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई इन लॉज कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, इफ यू आर डूइंग अ गुड थिंग्स सो यू शुड गो हैड। तो आपका फिर फियर, आपके दो फियर निकल के आए हैं। एक तो आपको पहले खुद का फियर था कि अच्छा, अगर कुछ मेरे हस्बैंड, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई या ये डिसीजन रॉन्ग हो गया तो मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, राइट? तो वो हमारा सेल्फ फियर होता है। पहले या आप उसको हमको ओवरकम करना है। फिर सेकंड फियर है कि लोग क्या कहेंगे, यू नो, लोग और लोग क्या कहेंगे, और उसमें हम कितना भी सोचे हम अफेक्ट हो चाहे ना हो, बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन वी हियर। तो वो था, उसमें आपको इन लॉज की सपोर्ट मिली, एंड देन आपको यू नो वो आपको हिम्मत मिली, आप ज्वाइन करेंगे, राइट? एग्जैक्टली। तो आप अपने सपोर्ट के बगैर और अपने फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में कि नहीं आप करो, मैं जब आपके साथ हूँ। और फिर जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो फिर वही लोग आपको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं कि या नहीं, यू सो आर डूइंग अ गुड जॉब। I'll come back to you because you know सक्सेस तो बाद में, पहले हम फियर पे आज we'll talk about fears because fear क्या कहते हैं ना, एक वो है कि मुझे याद नहीं आ रहा, I'll come back to that. So we'll talk about first fear. So Satnam, please share us your fear. क्या fear था आपका? मेरा फियर सबसे पहले तो यही था कि क्या मैं इस बिज़नेस को, जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे मेरे मेंटर इस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, क्या मैं ऐसे कर पाऊँगी? क्योंकि मेरे पास एज़ अ सिंगल मदर आई यूज्ड टू डू 2 जॉब्स बिफोर आई जॉइन दिस बिज़नेस। तो मुझे ये था कि क्या मैं इस बिज़नेस को उतनी, चाहे 2 घंटे भी हैं, क्या मैं इसको उतना टाइम दे पाऊँगी? क्या मैं इसको सक्सेसफुली रन कर पाऊँगी? एक फाइनेंशियल का भी था कि मैं एज अ सिंगल पेरेंट, एज सिंगल प्रोवाइडर, लाइक यू नो, इफ आई स्टार्ट दिस बिजनेस विल आई बी एबल टू लाइक सक्सेसफुली रन इट? क्योंकि बहुत से सवाल थे। एक ये भी था कि मेरे पास कोई ग्रेजुएशन का इतना कोई डिप्लोमा नहीं था, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, और ना ही कभी सोचा था कि भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 जॉब कर रही थी, तो मेरे पास मेरे बच्चे के लिए टाइम नहीं था। तो मेरा ये भी था कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी क्या मैं स्टिल मेरे बच्चे को वो टाइम दे पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ? क्योंकि टाइम ना देने की वजह से हमारे बीच में, लाइक जैसे
थोड़ा लाइक डिफरेंसेस हो रहे थे, क्योंकि उसको मेरा टाइम चाहिए था, मुझे ये था कि मैं आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड हर एवरीथिंग व्हाट शी नीड्स, तो उस चक्कर में देन आई लाइक आई डिडंट इवन नो व्हेन शी ग्रू, और आई स्टिल रिग्रेट दैट, क्योंकि मुझे उसका सारा बचपना आई हैड टू मिस इट बिकॉज आई ऑलवेज वर्क 2 जॉब्स। पर इस बिजनेस के जो सारे फियर थे, जो मेरे डर थे कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, विल आई बी सक्सेसफुल इन दिस, मुझे इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सारे फियर मेरे तब गायब हुए जब मैंने इस बिजनेस को, जैसे उन्होंने बोला 149, आई ट्राइड माई ट्रायल पीरियड, और मैं आई वेंट थ्रू द होल सिस्टम। फिर after a couple days I took a time before I paid 149. I did I took my research, did my research and everything, asked so many questions. And to be honest, जो हमारे इस बिजनेस में जो एक ये होता है, जो मेरा डर था, क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले I did multiple other things which was remote online. You did multiple other things online. जो कहा जाता था यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम एंड ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल मैं स्टिल ऑक्यूपाइड थी मेरे लैपटॉप के सामने, मुझे उतना टाइम उसको देना ही पड़ता था, सो इट स्टिल डिडंट वर्क आउट फॉर मी। और इस बिजनेस में ये था कि ये जैसे मैंने और उसमें कोई हेल्प भी नहीं मिली, जैसे बोला भी यू विल बी गेटिंग ट्रेनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वंस यू टोल्ड समथिंग, आपको एक बार कुछ समझा दिया गया है, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू जस्ट बी गेट प्रो इन इट, लाइक इट डजंट हैपन इन वन टाइम। हमारे बिजनेस की तरह नहीं है कि एवरी वीक हमको ट्रेनिंग मिलती है, राइट? हाँ, जो इस बिजनेस में नहीं है, हमें 24/7 ट्रेनिंग होती है, और हमारा जो कम्युनिटी का सपोर्ट है, इट्स ऑलवेज देयर। इफ वन पर्सन डजंट आंसर यू एट वन टाइम, somebody will answer you, so आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं। आई थिंक यही जो मेरा फियर था कि क्या मुझे वो हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो मुझे पहले एक्सपीरियंसेस में नहीं मिली। सक्सेस का था भी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, या कोई भी चीज है अगर आप उस पे एफर्ट करोगे देन देयर इज नो वे दैट यू वोंट गेट सक्सेस। सो मैं बहुत अपने आप को अब इस बिजनेस में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, और जैसे सोशल मीडिया का फलक जी ने कहा, आई हैड नो एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता था हाउ आई एम गोना डू इट, पर मेंटोरशिप थी, कोचिंग थी, ट्रेनिंग थी, सपोर्ट था। इन द बिगिनिंग इट वाज रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, आई हैड टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो मुझे वो सब टाइम लगा सीखने में। बट मुझे ये कहीं ना कहीं था कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे लिए किसी और ने नहीं करना। इफ आई वोंट डू इट, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट। मैं आज जहां खड़ी हूँ, मैं अगले 10 साल तक वहीं खड़ी रहूंगी, एंड आई डिडंट वांट इट टू डू दैट, आई डिडंट वांट इट टू रिग्रेट, आई डिडंट वांट इट टू रिग्रेट दैट आई डिडंट ट्राई। सो आई डिड ट्राई एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हर दिन एक कुछ नया सीखने को मिलता है, नया फेस मिलता है, एक नई स्टोरी मिलती है, जिससे आप अपने आप को you keep motivating yourself. Sometimes when we are demotivated or maybe not demotivated, but कभी-कभी हमको लगता है अरे, then we go and listen to one of the success stories. Exactly. और फिर हमको दोबारा we feel so motivated because सबकी story is like very motivating. Yeah. Okay, coming to that, I want to share my fear. So I don't have a very, मेरे पास कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक फियर नहीं है, एक जनरल फियर होता है, बट एक्चुअली मेरे को फियर नहीं था, बिकॉज मुझे लगा, मैंने एक चीज सीख ली है धीरे धीरे कि कोई बात नहीं, मैं फेल ही होंगी ना, एटलीस्ट मैं ये रहेगा कि मैंने ट्राई किया। एंड एट द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन आई हैव, मतलब माय किड्स हैव ग्रोन अप, ओके, आई एम नॉट completely working for money, but I want purpose in life and I want to earn money just to feel good. तो मुझे ये ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला स्कैम हुआ, आई सेड स्कैम हुआ, आई हैव द ओनरशिप, दैट ओनरशिप इज ऑन मी। एंड देन व्हेन ही वाज चेकिंग माय इंटरेस्ट इन दिस, व्हेन ही सॉ दैट आई एम दैट मच क्लियर, कि जैसे आपने बोला, आपने कुछ किया और वो निकला, लेकिन फिर आपने नेक्स्ट ऑनलाइन के लिए रुके नहीं ना, आप होता है इट हैपेंस। तो आई वाज टेकिंग फुल ओनरशिप, और मुझे ये बिजनेस को इसलिए नहीं ज्वाइन करना था कि मेरे को 3 महीने में सक्सेस ही, लोग बोलते हैं हमको कितने दिन में पैसे मिलेंगे, आई सेड सी सबकी जर्नी अलग है, पैसे तो जरूर मिलेंगे बट सबकी जर्नी अलग है। सो मेरे को ऐसा कोई फियर नहीं था, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और एक्चुअली मेरे को, आई डोंट रिमेम्बर आई वाज हैविंग एनी फियर, आई वाज रेडी टू टेक ओनरशिप फॉर दिस बिजनेस। फेलियर, सक्सेस is all mine.
Yes, that's right. Because मेरा भी यही था. I was scared. Like, I won't say I wasn't scared. Because as a sole person of earning, Because you I are a was sole scared too. person, right? पर हाँ, ये जरूर था कि जैसे मैं ये था कि अगर मैं जहां मैंने इतनी चीजें ट्राई की हैं, लेट्स ट्राई दिस टू. सो कल मैं हाँ, अपने आप में ये ना सोचूं कि शायद मैं ये कर लेती तो शायद अच्छा होता. सो हम्म, आप हम्म, इतना सोचते हैं किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, हम नहीं रियलाइज करते कि हम अपने आप को ही उतना पीछे कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि हम एक्चुअली यू आर जितनी लेट राइट. स्टार्ट करेंगे उतनी ही हमारी जर्नी लेट स्टार्ट होगी. सो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. दिस इज द टाइम टू स्टार्ट. या If you want to live your life like the way you always want it, then you have to take an action. एंड Like, जैसे पलक ने बोला कि रिलेटिव्स, तो आई चोज नॉट टू डिस्क्लोज इट टू माई रिलेटिव्स, क्योंकि मुझे क्यों समझाना है व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल व्हेन दे लास्ट, देन दैट मेक्स अनदर. सो मुझे वो फियर और वो टेंशन नहीं था, बिकॉज it won't help us anyways. So this is a very important thing, because many people here on the fence which reach out to us. एंड जब हम ये दूसरा बहुत बड़ा फियर है जो हम में से किसी ने शेयर नहीं किया, इज फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट. कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया एंड बिकॉज उनको ये लगता है कि ये डिजिटल बिजनेस है तो उनको लगता है फ्री में स्टार्ट हो जाता है. कुछ है लाइक इफ यू मेक व्लॉग्स और इफ यू उसमें है, बट दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का फियर भी बहुत लोगों को होता है. एंड मैं पहले अपना शेयर कर लेती हूँ बिकॉज इट्स कमिंग इन माई माइंड व्हाट आई वांट टू से, देन यू कैन शेयर. कि बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस में वो हैं जिनके पास दोज हु वर ऑलरेडी इन डेट एंड स्टिल दे हैव टेकन दिस बिजनेस. उन्होंने लोन लिया एंड दे हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस बिकॉज दे वांटेड अ चेंज इन देयर लाइफ, है ना. तो हमें तो बहुत पता है, बट जो लोग सुन रहे हैं हमको, जिनके पास पैसा भी है, दोज हु कैन इन्वेस्ट ऑल्सो, बट उनको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले हम पहले स्टैंप लगा दें कि यू विल गेट मनी इन 6 months. let's talk about it. फलक, आपको क्या बोलना है इस बारे में? जी, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बेसिकली मुझे भी जो लीड्स आती हैं, तो वो मोस्टली ये इस चीज़ पे बड़े ये होते हैं कि जी 149 अगर हम पे कर लेते हैं, बिज़नेस मॉडल भी देख लेते हैं, बट आफ्टर दैट दे आर कन्फ्यूजिंग टू इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली देखिए, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं. बिज़नेस जो है, आप 9 to 5 की जॉब नहीं है और एक आपकी कोई 9 to 5 की हेडेक भी नहीं है. बिज़नेस में आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको फौरी रैपिडली रिजल्ट्स नहीं आपको गेन होते उससे. आपको टाइम लगता है. जब आप उस पे अपना एफर्ट्स डालते डालते जाते हो, फिर जब आपको वो देना शुरू करता है, तो फिर you get an incredible result from it. Yes, you're right. तो ये है कि आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी. एंड सडनली मैंने खुद लोन लेके इसको क्या कहते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट की इस पे. और जब आपको लोन लिया ना, you have taken a loan. एग्जैक्टली. अब देखिए ना, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं. जैसे सतनाम जी ने कहा, आपको किसी ने नहीं आके कहना कि हाँ भाई आप कर लो. दिस इज ऑन योर डिसीजन कि जब आप सक्सेसफुल करने के लिए आपको थोड़ा गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट इज द मेन थिंग ऑफ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे लेने हैं. तो बस मैं इसी चीज को कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द बिजनेस बेसिकली. Exactly. So please ये ना समझा जाए कि ये फ्री में है. इनफैक्ट I also did not take money from my husband because I was doing earning and he was ready to give, but I didn't want to. मुझे लगा I want to take ownership, right? तो मैं अपने आप अपने पैसे लगा के एंड उसमें मुझे फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है, राइट. सो इन्वेस्टमेंट, कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट है, एंड बट इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट. आपको क्या बोलना है इस बारे में फलक, की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से ऑन द स्केल ऑफ 10, एक हम रख लेते हैं 1 to 4, 4 to 7 and 7 to 10, ठीक है. लेस इन्वेस्टमेंट, मीडियम इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट. आप इसके बारे में क्या बोलोगे? देखिए, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू. देखिए, ये बिजनेस एक ऐसा, मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस मुझे क्यों पसंद आया, इस बिजनेस ये मॉडल बेसिकली क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपके कैपेसिटी के मुताबिक है. बट आपको अर्निंग, चाहे वो आप कम इन्वेस्ट करो, मीडियम करो, जैसे आपने बताया, आप हाई इन्वेस्टमेंट करो,
उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स उससे यानी कि 4 टाइम एक्स्ट्रा ही करते हैं। ठीक है। डे बाय डे आपके जो यानी कि अमाउंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप कम से आपको बेसिकली ज्वाइनिंग देनी है। व्हेन यू एंटर इन दिस बिजनेस देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिजनेस। तो Yes. बेसिकली आपको पहले इसको देखना पड़ेगा $149 दे के कि ये बिजनेस है क्या। है क्या, और इसका कमीशन सिस्टम क्या है? एग्जैक्टली और जैसे कि सतनाम जी ने कहा इतने कोचेस हैं हमारे मेंटोर्स हैं और वो 24 आवर्स दे आर स्टिल अवेकिंग फॉर आवर्स के अगर हम कहाँ भी स्टक होते हैं ट्रेनिंग्स है वो हमें उसी वक्त गाइड करते हैं। ट्रेनिंग्स आर अमेजिंग अमेजिंग। तो फिर आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही आपको मिलेंगे जैसे आप उसको टाइम देंगी ट्रेनिंग्स देखेंगी क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैम्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको जस्ट आपसे काम लेते हैं एंड दे डिडंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स और गाइडलाइंस नथिंग एल्स। लेकिन ये बिजनेस मॉडल आपको और कम्युनिकेशन इतनी है कि आपकी फ्रेंड फॉलोइंग्स इतनी ज्यादा हो जाती है यानी कि जो अदर बिजनेस पार्टनर्स हैं अगर आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे। इवन मी एज वेल मैं खुद सबको गाइड करती हूँ। कोई मुझसे पूछता है इवन इज नॉट माय टीम मेंबर लेकिन मैं उनको गाइड करती हूँ क्योंकि दिस इज द बिजनेस और ये एक टीम वर्क है। इट्स अ टीम वर्क। इसमें Yes. हम सब ने एक दूसरे को लेके ग्रो करना है इस बिजनेस को भी और अपने आप को भी। या एग्जैक्टली। सो सतनाम प्लीज आप शेयर करिए सो दैट यू नो देन वी कैन डिस्कस मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कमीशन। सो जो इसका जो इसमें जो फाइनेंशियल जैसे आपने बोला लाइक ना जो इन्वेस्टमेंट है जैसे आप हम कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं राइट उसके हिसाब से इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इट्स लाइक बेसिकली नथिंग। और उसके बावजूद भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको जो एक जगह देखनी पड़ती है उसके हिसाब से इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं यू हैव टू वर्क विद देम टू सेट अप योर बिजनेस। पर हमारा जो ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है एक तो यही है कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं वंस यू बिकम बिजनेस ओनर सब कुछ आपको ऑलरेडी बनाया like you know already built for you is given to you so you don't have to work hard to build anything. Actually we are paying for that Satnam. I want to add कि वो जो हमको सर्विस मिल रही है जो हमको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं जो हमारे लिए वेबसाइट पे जो वर्क कर रहे हैं वी आर पेइंग एंड देन देयर इज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व जिसके लिए हम अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे वो $149 में डिस्क्लोज होता है तो हम वी आर पेइंग फॉर दैट राइट। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। पर यही है कि जैसे उस बिजनेस में आप स्पेंड भी करते हैं ट्रेडिशनल में बट यू आर स्टिल बिल्डिंग व्हिच यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस वन सो आपको वो कुछ दोबारा बिल्ड नहीं करना पड़ता। ऑल यू नीड टू वर्क ऑन बिकमिंग लाइक यू नो अपने आप को इम्प्रूव करने में आपको काम करना पड़ता है ना कि इस बिजनेस को कुछ इम्प्रूव करना पड़ता है। इट्स ऑलरेडी बिल्ड फॉर यू। और ऑफ कोर्स जैसे जितना आप इस पे मेहनत करेंगे इस बिजनेस में जितना टाइम देंगे जितना इसको लाइक यू नो कहते हैं हम अगर जितना बच्चे छोटा होता है जितना उसको प्यार करते हैं उतना ही आपसे अटैच होता है लाइक यू नो यू बिकम पार्ट ऑफ इट। वही है इस बिजनेस में जितना आप इसको प्यार से करेंगे इस पे ट्रस्ट करेंगे अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे इस बिजनेस में ऑलवेज गिव यू रिजल्ट। सो पहला तो यही होता है कि जो हमारे सबके मन में डाउट होता है कि हम दूसरों की जर्नी देखते हैं कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं क्या मैं कर पाऊंगी। सो कोई भी किसी से अलग नहीं है वी आर ऑल बिल्ड सेम इट्स जस्ट लाइक हाउ मच एफर्ट वी आर पुटिंग इनटू दिस बिजनेस। जितने आप एफर्ट डालेंगे दिस बिजनेस हैज अ कैपेसिटी टू गिव यू लाइक यू नो आप एक बार स्पेंड करते भी हैं तो उससे 10 गुना 20 गुना आप इससे अर्न भी करते हैं पर आपको इस पे लाइक यू नो हमेशा अवेलेबल रहना है अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बना के रखनी है और कमिटेड रहना है इस बिजनेस के लाइक यू नो इस बिजनेस के लिए मतलब कमिटमेंट तो हर जगह चाहिए ना एवरीवेयर इन पॉइंट मैं सॉरी टू से ऐड करना चाहूंगी इसमें कि और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जस्ट ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। आपकी जो अदर बिजनेस है आप उसमें डे बाय डे इन्वेस्टमेंट करते ही रहेंगे तो वो आपका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन ये बिजनेस जो है बेसिकली आपने जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है एज योर कैपेसिटी तो उसके अकॉर्डिंगली और आपको रिजल्ट्स जो है उसके वो डे बाय डे आपको जो इसके जो इनकम स्ट्रेटजीज है वो आपको डे बाय डे इंक्रीज होगी बट यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली वंस।
इनफैक्ट मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती थी, बट क्योंकि मैं इंडिया से कर रही हूँ, देयर इज अ लिमिटेशन, आई कैन ओनली इन्वेस्ट दैट मच. सो मैंने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया है. सो दैट व्हाई आई एम शेयरिंग कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग इज नथिंग. सो अगर आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको $149 पे करना पड़ेगा. देन आई वांट टू आस्क कि कुछ लोगों को ये भी बहुत है, और ये बहुत वैलिड भी है, कि सोशल मीडिया पे जब हम आते हैं एंड देन देयर इज सो मच ऑफ useless stuff, people, anybody can reach out to us. हम अपने आप को फ्रंट में लाना चाहते हैं. As a female, we should make sure that it is safe. तो उस बारे में आप what do you want to tell the people कि हम अप फ्रंट अपना फेस दिखाते हैं, कुछ लोग इस चीज को नहीं चाहते, दे आर कैमरा दे आर शाय, कैमरा शाय. तो क्या आप क्या बोलना चाहते हो? बेसिकली देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो है आपको एक फ्रीडम भी देता है इस चीज का, ठीक है, कि इट्स अप टू यू कि आप अपना जो फेस है रिवील करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते. बहुत सी हमारी जो लेडीज हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने हिजाब लिए हुए हैं, फिर उन्होंने क्या कहते हैं निकाब किए हुए हैं, बट दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस. इट्स अप टू यू. और देखिए, ये दिस इज द वर्ल्ड, ये यहाँ पे बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी जो बेसिकली आपका जो वे है, विच वे यू वांट टू बी चूज इट. ओके, सो बेसिकली ये है कि आप खुद को डिपेंड करें कि आपने इसको किस तरह लेना है. सोशल मीडिया को आप सब लोग बुरे तरीके से भी यूज करते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है वो टोटली डिजिटल है. वो आप आपको करना, आप ना चाहते भी आपको इसमें जाना पड़ेगा. राइट. तो फिर ये है कि ये आपको डिपेंड करता है कि आप अपना फेस रिवील करो, और ये बिजनेस आपको फुली फ्रीडम देता है. जरूरी नहीं है, लेकिन इसका इशू नहीं है, लैंग्वेजेस का इशू नहीं है, क्वालिफिकेशन का नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो इफ इट्स अ प्लेटफॉर्म हु गिव्स यू एवरीथिंग, एवरी फ्रीडम, सो व्हाई डोंट यू जॉइन इट? बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू माय डिसीजन, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ देम. सो फलक, आप ये बताओ, जैसे आप हाउसवाइफ हो, राइट, तो क्या जो लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में हैं, विमेन, या कोई डॉक्टर है, क्या वो हमें देख के ये सोचेंगे कि दिस इज नॉट फॉर अस, या ये सिर्फ उन हाउसवाइफ्स के लिए है या यंग मॉम्स के लिए है जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, दिस इज टोटली, आई एम टोटली डिसएग्री विद दैट कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, इट्स दिस बिजनेस फॉर एवरीवन. अब जो डॉक्टर्स हैं, कई अब मोस्टली जो बिजनेस हमारे पार्टनर्स हैं वो टीचर्स थे, जिन्होंने अपनी टीचर लाइफ को छोड़ के तो हाँ तो फिर देख ले, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन दिया एंड दे गेट अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस बिजनेस. तो ये है कि ये डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स इसको एज अ साइड हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए या एट द नेक्स्ट लेवल जो है वो अब जैसे से फ्यूचर बहुत तेजी से एआई टूल्स आ गए हैं, डिफरेंट थिंग्स आ गई हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपना बैकअप जो प्लान है ना वो रखना पड़ना है, बिकॉज आगे कुछ भी हो सकता है. हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. इनफैक्ट कॉर्पोरेट, सतनाम आप भी प्लीज शेयर करो कि मैं भी, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारे पास जॉब नहीं है, इनके पास जॉब नहीं थी इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया है, और मे बी दे वर लाइक सिंगल मॉम्स. आप क्या, is this business only for housewives or single moms, or this is also for corporate and doctors or any profession? And please share as per the people who are in our business. सो वही मैं जैसे भी ये बोल रहे थे, कोई भी इसको जैसे ज्वाइन कर सकता है. सो आई हैव अ स्टोरी टू शेयर. लाइक आई डिड वन ऑफ द लाइव ऑन माय पेज विद वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर, और मैं बहुत अमेज थी. लाइक दैट एक तो वो ग्रैंड मदर है, जैसे उन्होंने बोला रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई एज की. सो यू कैन ज्वाइन दिस बिजनेस इफ यू जस्ट नीड टू बी ओवर 18 एंड हैव योर पेपर वर्क वेयर एवर यू लिव. यू हैव टू बी लाइक बी एबल टू लीगली वर्क इन दैट कंट्री. उसके अलावा जैसे उनसे मैंने जब बातचीत की, मैं बहुत अमेज थी, क्योंकि जब जैसे मेरी स्टोरी है, आई ओनली केम टू अमेरिका टू हैव अ गुड लाइफ, पर यहाँ पे आके अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ये सब में वो लाइफ कहीं
पता नहीं कहाँ चली गई, सिर्फ 9 to 5 के चक्कर में बस उसी में घूम के रह गए, राइट? पर जब मैं इस बिजनेस में आई और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, आई सॉ बैंकर्स, आई सॉ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, आई सॉ डॉक्टर्स, आई सॉ इंजीनियर, आईटी पीपल, लाइक इतना मुझे graphic designer, accountant, CAs. आप कोई ऐसा कोई करियर नहीं है जो हमारे बिजनेस में आप नहीं देखेंगे। उन सबके आने का, इस बिजनेस को ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि दे ऑल वांटेड द पीस इन देयर लाइफ। क्योंकि जो 9 से 5 की जो जिंदगी होती है वो बहुत रशफुल होती है। उसमें बस आप घर में आते हैं, सोते हैं और फिर नेक्स्ट दिन के लिए रेडी होते हैं, चले जाते हैं। पर वो जो पीस है, अपनों के साथ बैठने का, बात करने का, उनको एंजॉय करने का, अपनी मेमोरीज बनाने का, वो कहीं ना कहीं वो गायब सा ही हो गया है। उसी किसी चक्कर में शायद मैं भी थी और मुझे भी वही एक चाहिए था कि आई वांट टू बी विद माय डॉटर। सो उसी में मैंने इस बिजनेस के बिजनेस के प्लेटफॉर्म के से मिली और इसको ज्वाइन किया। सो मेन रीजन सबका यही है। ये जरूरी नहीं कि आप कौन से करियर से आ रहे हैं, मेन सबका इस टाइम यही है कि सब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ Exactly. I wanted to share a data जो मैंने कल निकाला था, I'm looking for that, जिसमें वो बहुत ही relevant है हमारे लिए. Just I'm trying to see if I can find out now. Just है तो, but in a hurry I'm not able to find out. जिसमें ये बता रहे थे कि the people who are in corporate job, like 16% of them are sad, 50% are frustrated, So, and it is the latest US का New York Times में ने निकाला हुआ है, जो हमारी ट्रेनिंग में they shared. यही है ना वो रीजन, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि जितना उनसे काम लिया जाता है उसे हिसाब से दे आर नॉट गेटिंग पेड। सो वो ऑफ कोर्स हम इतना काम कर रहे हैं और वी आर नॉट अर्निंग, जो कि इस बिजनेस में है you don't have to spend too much time, you just need to get plugged in and enjoy your life. किसको नहीं पसंद होगा कि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे दिन में काम करो एंड यू अर्न वे मोर देन गिविंग 40-50 आवर्स अ वीक। सो किसको नहीं पसंद आएगा? Enjoy your vacation. To be honest, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद I have taken 2 vacations which जो मैं पिछले 20-22 साल से प्लान कर रही थी कि मैं लूंगी, पर मुझसे नहीं ली गई। सो इस बिजनेस में आके एक ये आपको होगा कि अगर आप इस बिजनेस में काम करेंगे, so there is no way that you will not get results. ये है कि आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, plugged in रहना पड़ेगा, committed रहना पड़ेगा, और जो भी इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, you have to keep doing it. You cannot stop. क्योंकि अगर आप स्टॉप करते हैं, you make a pause, you can take a pause, पर आप अपने आप को उतना ही पीछे कर लेते हैं। So मैं आपसे वो पूछती हूँ, क्विक रैपिड फायर, आपने अभी जो भी बताया इस बिजनेस के लिए चाहिए, give me in 10 seconds one word which is most important for this business. What is that trait? Commitment. This business. Okay, and for me, more than commitment, patience. Patience, and don't be skeptical, and be be active. Yes. Determined, and be determined on your goals. That's it. Let us one by one. Let us only in one word. Let us say the fear which people have one by one. What are the fears people have before joining this business? Will I get success in this business? Only one word. One word. Let's play this game. फलक आप बताइए। fears बस यही थे कि बस skeptical बहुत थी मैं। Skeptical, आप बताइए सतनाम। Same thing. Skeptical. Failure. Skeptical. And investment. जी। Yeah, exactly. इतना ही हम अभी सोच पा रहे हैं। And then I think let's keep our conversation अभी यहीं तक, so that people can just focus that हमारा topic आज fear ही था, like what are the challenges and how to overcome. So now we want that if you want to reach out to us, and if you want, if you are inspired enough, so please reach out to us. And thank you so much, Satnam, because I know you have just come from your work and you are sitting for live, and it's very cold also. And also Falak, it's night there. Thank you so much for, being so flexible. Thank you so much. Saturday for me, it's a Friday evening for me. Have a nice weekend.
And thanks for Thank coming. you. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you so Bye, much, Nidhi. everyone. Bye, everyone.